پھر ہم دونوں گرد و پیش سے لطف اندوز ہوتے ہوئے خرامہ خرامہ عمارت سے نکاس کے راستے پر چل پڑے۔ بینکاک میں کسی نے ہمارا سوٹ کیس کھلوانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی اور بھیم گن آرام سے نکل آئی تھی۔ بیرونی حال میں تھائی لینڈ کے کئی محکموں کے اسٹال وہاں آنے والے سیاحوں کی رہنمائی کے لیے موجود تھے۔ میں نے ہوٹل میں کمرے کے حصول کے لیے ایک کاؤنٹر کا رخ کیا جہاں ایک متبسم خاتون سیاحوں کی میزبانی کے لیے موجود تھی۔ میں تنہا ہوتا تو تیسرے درجے کے ہوٹل میں بھی قیام کر سکتا تھا، لیکن غزالہ کے ساتھ اس شہر خرابات میں کوئی رسک نہیں لیا جا سکتا تھا۔ خوش شکل سفید فام خواتین پر نظر پڑنے کے بعد یاد آنے والے انٹرویو کی وجہ سے میں اس بارے میں زیادہ محتاط ہو گیا تھا۔ ڈبل روم کی فرمائش پر اس خاتون نے اپنے کمپیوٹر کی کی بورڈ پر تیزی سے انگلیاں چلائیں، پھر یکے بعد دیگرے کئی ہوٹلوں کے نام لیے جہاں معیاری کمرے دستیاب تھے۔ میری استفسار پر اس نے بہت تحمل کے ساتھ ان ہوٹلوں کے کرائے بھی بتائے اور میں نے اسی وقت ہلٹن ہوٹل کا انتخاب کر لیا۔ اس عورت نے ہم دونوں کے نام اور پاسپورٹ نمبر کمپیوٹر میں ڈالے اور پرنٹر سے ایک سلپ نکال کر مجھے تھما دی، جسے دکھا کر میں ہوٹل میں کمرہ حاصل کر سکتا تھا۔ بیرونی حال سے نکلتی ٹیکسیوں کی قطار ہمارے سامنے تھی۔ اگلی ٹیکسی کا ڈرائیور ہماری طرف لپکا۔ اسے توقع تھی کہ میں اپنے معیار کے کسی ہوٹل تک رسائی کے لیے اس کی مدد لوں گا، یوں سے ہوٹل سے کمیشن کی صورت میں اضافی آمدنی ہو سکتی تھی۔ میں نے ہلٹن ہوٹل کا نام لے کر اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اس نے وہاں تک پہنچانے کے لیے 700 بات طلب کیے، جو میری دانش میں بہت زیادہ تھے۔ دوسرے ایشیائی ملکوں کی طرح تھائی لینڈ بھی مول تول کے لیے بدنام ہے۔ ٹیکسی کے کرائے سے چیزوں کے دام تک بڑھا چڑھا کر بتانا وہاں کا رواج ہے۔ بھاؤ طے ہونے کا انحصار خریدار کے حوصلے پر ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کہاں سے شروع کرتا ہے۔ میں نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی بولنے والے تھائی ڈرائیور کی آنکھوں میں حریصانہ چمک دیکھ کر اسے 200 بات کی پیشکش کی۔ اس نے یوں برا سا منہ بنایا جیسے میں نے اس کی شان میں کوئی گستاخی کی ہو۔ وہ اس کا ایک انداز تھا، میرے بجائے کوئی نرم دل اور مہذب سیاہ ہوتا تو شرمندہ ہو کر فوری طور پر اپنی پیشکش میں خاطر خواہ اضافہ کر دیتا، جسے مول تول کے ذریعے مزید بڑھایا جا سکتا تھا۔ میرے لیے وہ شہر نیا نہیں تھا۔ میں خاموشی سے اس کے جواب کا منتظر رہا۔ اس نے منہ بنانے کے نفسیاتی حربے کے استعمال کے بعد کچھ دیر توقف کیا۔ مجھے خاموش پا کر وہ یکا یک 400 پر آ گیا۔ ان لوگوں میں اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اپنا اور خریدار کا زیادہ وقت برباد نہیں کرتے، ہر حجت کے جواب میں اپنی مانگ میں ڈرامائی کمی کرتے ہیں اور پھر ایک مقام پر اٹک جاتے ہیں۔ وہ 300 پر اٹک گیا اور میں نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ اپنی نگرانی میں ہلکا پھلکا سوٹ کیس ٹیکسی کی ڈکی میں رکھوانے کے بعد ہم دونوں گاڑی میں سوار ہو گئے۔ ڈرائیور نے اپنی نشست سنبھالی اور ٹیکسی تیزی کے ساتھ چل پڑی۔ غزالہ کے لیے وہ مول تول بہت دلچسپ ثابت ہوا۔ وہ اس کے لیے بینکاک کا پہلا سبق تھا۔ ٹیکسی کچھ دیر تک باغات یا کھیتوں کے درمیان سے گزرتی رہی۔ سڑک کشادہ تھی اور اس پر ٹریفک بہت زیادہ نہیں تھا۔ شاید وہ سڑک ایئرپورٹ تک آنے جانے کے لیے ہی بنائی گئی تھی۔ رفتہ رفتہ آبادی کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے۔ غزالہ حیرت اور دلچسپی سے ان اجنبی مناظر کا نظارہ کر رہی تھی۔ کنجان اور بارونق شہری علاقے میں داخل ہوتے ہی غزالہ رکشے نما عجیب سی سواری کو سڑک پر دوڑتا ہوا دیکھ کر چونک پڑی۔ رکشوں کی وبا یہاں بھی پھیلی ہوئی ہے۔ یہ یہاں کی سب سے مقبول پبلک ٹرانسپورٹ ہے۔ اسے ٹک ٹک کہا جاتا ہے۔ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ ہمارے آٹو رکشا کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ شہر میں ہر طرف گندمی رنگت کا پستہ قامت تھائی باشندوں کے ہجوم رواں دواں تھے۔ ان میں کثرت سے غیر ملکی چہرے نظر آ رہے تھے۔ بینکاک کے ٹیکسی ڈرائیوروں کے بارے میں میرے پرانے تجربات خوشگوار نہیں تھے۔ وہ غیر ملکی سیاحوں پر ضرورت سے زیادہ مہربان ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ موقع ملتی اپنی سیٹ کے قرب و چوار میں پوشیدہ جگہ سے تصویری البم نکال کر سواری کو دکھانا وہ اپنا فرض تصور کرتے تھے۔ میں راستے پر ڈرتا رہا کہ کہیں وہ مجھے بھی البم نہ تھماتے۔ وہ یک طرفہ طور پر ہمیں راستے میں آنے والے مشہور مقامات کے بارے میں بتاتا جا رہا تھا۔ ایک طرف اس کا لہجہ صاف نہیں تھا، دوسری طرف وہ تھائی نام اور الفاظ ایک دوسرے سے اتنے ملتے جلتے تھے کہ مجھے ان میں کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے میں نے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ میں نے اسے ذرا بھی منہ لگایا تو مجھے کوئی شرمناک البم تھما دے گا۔ وہ معاملہ فہم ثابت ہوا۔ اس کی ٹیکسی ہوٹل کے ڈرائیو وے میں داخل ہو گئی، لیکن اس نے راستے بھر مجھے کوئی البم وغیرہ نہیں دکھایا۔ اپنے تجربات کی بنا پر وہ جانتا تھا کہ اپنی عورتوں کے ساتھ بیرون ملک سے آنے والے لوگ عیاشی کے معاملے میں اتنے بے حوصلہ ہوتے ہیں کہ ان پر محنت کرنا کبھی بارآور ثابت نہیں ہو سکتا۔ ایئرپورٹ سے ہوٹل کا فاصلہ خاصا طویل ثابت ہوا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں نے 300 بات پر اپنی رضامندی ظاہر کر کے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا تھا۔ ہوٹل کے باوردی پورٹر نے ٹیکسی سے ہمارا سوٹ کیس اتارا اور ہم ہوٹل کے بکنگ کاؤنٹر پر پہنچ گئے۔ میں نے اپنے پاس موجود رسید دی جس کا اندراج ہوٹل کے کمپیوٹر میں موجود تھا۔ کچھ لیے دیے بغیر ایئرپورٹ سے ہی کمرہ محفوظ ہو چکا تھا۔ ہم دونوں کے پاسپورٹ لے کر ہوٹل والے نے اپنے اندراجات مکمل کیے
और जरा सी देर में हम होटल की चौथी मंजिल पर अपने कमरे में मौजूद थे, जो आने वाले दिनों में हमारी पनाहगाह साबित होने वाला था। आखिरकार हम इस गर्दाब से निकल ही आए। पोर्टर के चले जाने के बाद गजाला ने आरामदेह बिस्तर पर गिरकर मुसरत के साथ कहा, अब इन खुशफहमियों में पड़ने की जरूरत नहीं, इतना काफी है कि हम कराची से निकल आए। हो सकता है कि यहाँ के हालात वहां से ज्यादा गंभीर साबित हों। मैंने उसके करीब बैठकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यहाँ तुम्हारे कहने के मुताबिक की कच्चाई है कि अमरीकियों का साजिशी उनसर हम पीछे छोड़ आए हैं। कमरे में जरूरत की बुनियादी चीजें मौजूद थीं। मिनी बार में मुख्तलिफ मशरूबात के साथ शराब की कई छोटी बोतलें भी मौजूद थीं, जिनसे मुझे कोई सरोकार नहीं था। गजाले की ख्वाहिश थी कि रूम सर्विस वालों से कहकर वो बोतलें वहां से हटवा दी जाएं। छोटे रेफ्रिजरेटर में इनकी जगह दूसरी चीजें रखी जा सकती थी। मेरे पास बैंकॉक के 2 अहम फोन नंबर मौजूद थे। इनमें से एक नंबर IB के मकामी ब्यूरो चीफ असद खान का था। जलाल के अंदाजे के मुताबिक कोई शख्स छोटा राजन तक में रसाई के सिलसिले में मददगार साबित हो सकता था। दूसरा फोन नंबर राजन का था। कराची में रहकर इसे छेड़ना होता तो मैं वो नंबर इस्तेमाल कर सकता था। मैंने यही सोचकर वो नंबर हासिल किया था। बैंकॉक पहुंचने के बाद छोटा राजन से राब्ता करना खैर जरूरी था। बेहतर यही था कि मैं खामोशी से उस तक पहुंचने की कोशिश करूं। कमरे में कुछ देर तक सस्ताने के बाद मैंने असद खान से राब्ता करने का इरादा कर लिया। मैंने चेक करने के लिए जेब से अपना मोबाइल फोन निकाला तो इस पर कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। दस्तयाब नेटवर्क की हदूद से हजारों मील दूर निकल आने की वजह से फोन ने काम करना छोड़ दिया था। जब तक इस पर रोमिंग बहाल न होती, फोन बेकार था। होटल के कमरे में बराह रास्त डायलिंग की सहूलत दस्तयाब थी। मैं ऑपरेटर को दरमियान में लाए बगैर असद को फोन कर सकता था। मैंने जरा सी देर के लिए सोचा। होटल से फोन करने की सहूलत मुफ्त में फराहम नहीं की जाती थी। दुनिया के हर हिस्से में होटल वाले फोन के असल बिल के साथ हर कॉल पर अपने इजाफी सर्विस चार्जेस भी वसूल करते थे। इस मकसद के लिए हर कॉल का कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होना जरूरी था। मैंने वो नुक्ता ज़हन नशीन कर लिया। इस होटल के तहत असद से राब्ता करने में कोई हर्ज नहीं था। वो बैंकॉक में IB का अकलौता अफसर होने के साथ एक आम पाकिस्तानी भी था। इसके बरक्स में राजन के लिए होटल का फोन इस्तेमाल नहीं कर सकता था। यहाँ कदम रखते ही आपकी मसरूफियात शुरू हो गई। गजाला ने मुझे फोन की तरफ बढ़ता हुआ देख कर कहा, जिंदगी हरकत का नाम है, जमूद आदमी को ले ठोकता है। इसे जवाब देकर मैंने असद का नंबर मिला लिया। दूसरी तरफ घंटी बजी और बजती ही रही। तीसरी घंटी पर मुझे शुबा हुआ कि इस नंबर पर कोई मौजूद नहीं था। जलाल ने मुझे उसका फोन नंबर दे दिया था, मगर मुझे इससे यह पूछना याद नहीं रहा था वो नंबर उसके दफ्तर का था या घर का। अगर वो दफ्तर का नंबर था तो दफ्तरी औकात खत्म हो चुके थे। इससे अगले दिन राब्ता हो सकता था। मैं फोन बंद करने का इरादा कर रहा था कि अचानक मेरे कानों में हेलो की एक भारी मर्दाना आवाज गूंजी। असद खान, मैंने इस्तफसार तलब लहजे में धीरे से कहा। बोल रहा हूँ। मेरे सवाल का जवाब शुस्ता उर्दू में आया था। मैं अली अहमद बोल रहा हूँ। थोड़ी देर मैंने अपना तारुफ कराना शुरू किया था कि उसने गर्मजोशी के साथ मेरी बात दरमियान जोचक ली। वेरी गुड। मैंने एयरपोर्ट से फ्लाइट की आमद कंफर्म कर ली थी और तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा था। मुझे एयरपोर्ट जाने से मना कर दिया गया था, वरना तुमसे वहीं मुलाकात होती। ये बताओ कि सफर कैसा गुजरा? इस वक्त तुम कहाँ हो? वो एक सांस में बोलता चला गया। उसके लबो लहजे से यह अंदाजा नहीं हो रहा था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। वो यूं बात कर रहा था जैसे बरसों से मेरा शनासा हो। सफर खुशगवार गुजरा। मैं अपने होटल में हूँ। तुमको मालूम होगा कि सद्दफ मेरे साथ आई है। सब मालूम है। अगर तुम थकान महसूस न कर रहे हो तो हम रात के खाने पर कहीं मिल सकते हैं। मैंने महसूस किया कि वो फोन पर तफसीली बात करने से गुरेज कर रहा था। यहीं आ जाओ, 9 बजे लाबी में मुलाकात होगी, फिर हम रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। मैंने सोचते हुए उसे पेशकश की। यही बेहतर रहेगा। अभी ये शहर तुम्हारे लिए अजनबी है। तुम्हारे लिए कहीं और पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तुम बुरा ना मानो तो सद्दफ को कमरे में छोड़ सकते हो। मैं देखूंगा। ये बताओ कि ये फोन नंबर तुम्हारे दफ्तर का है या घर का? दोनों एक है। मैंने घर को दफ्तर ही बनाया हुआ है। तुमको ये ख्याल क्यों आया? तुमने काफी देर बाद फोन उठाया था। मैंने उसे याद दिलाया। हंसी के साथ उसकी बेतकल्लुफाना आवाज आई। अकेले मर्द के यही मसाइल होते हैं। मैं किचन में अपने लिए चाय और सैंडविच बना रहा था। वो बेतकल्लुफी का मुजाहरा कर रहा था। मेरे लिए एहतियात गैर जरूरी थी। मैंने पूछा, तुम्हारे घर में किचन के लिए कोई मुलाजमा नहीं है? एक पेचीदा मसला है। वो जुमला खिदमात अंजाम देने के लिए ज्यादा तनख्वाहें मांगती हैं। मैं इतने पैसे दे सकता हूँ न मुझे इनकी दूसरी खूबियों से दिलचस्पी है। तनख्वाह के मुताबिक अपनी औकात में रहता हूँ। किचन के थोड़े से काम अपने हाथों से करके 1,500-2 हज़ार महाना बचा लेता हूँ। यहाँ की ये कहानियां अजीब हैं। मिलोगे तो सुनाऊंगा। मैं 9 बजे वहां पहुंच जाऊंगा। मैंने खुशदिली से अलविदाई फिक्रे कहकर फोन बंद कर दिया। बैंकॉक में वो मेरा पहला राब्ता था। इससे बात करके मुझे खुशी हुई थी। अपनी बातों से वो खुले दिलो दिमाग का आदमी मालूम हो रहा था। मुझे हैरत थी कि IB जैसे हिस्सास इदारे में एक गैर मुल्की महाज पर तने तरह काम करने वाला शख्स इस कदर खुश मिजाज कैसे था। इस बात होने से पहले मेरे जहन में
इसका जो खाका था, इसके मुताबिक इसे खुश्क मिजाज और रूखा फीका होना चाहिए था। सरकारी एजेंसियों में तवील मुद्दत तक काम करने वाले, आमतौर पर अपने काम से काम रखने वाले, मोहतात, सर्द महर और जज्बात से आरी होते हैं। असद इससे मुख्तलिफ महसूस हुआ था। 5 स्टार होटल में कयाम की वजह से मुझे गजाला की कोई फिक्र नहीं थी। मैंने एयरपोर्ट से होटल तक के तवील सफर में कहीं दंगा फसाद होता हुआ नहीं देखा था। अपनी बहुत सी खराबियों के बावजूद थाई कौम मुझे सुलझू और अमन परवर महसूस हुई थी। कम से कम बैंकॉक में ऐसा ही था। हमारे पास जलाल के दिए हुए $20,000 के अलावा वो खतीर रकम भी मौजूद थी जो मैं रोजमर्रा अखराजात के लिए आखिरी बार सलमा से लाया था। गजाला ने चालाकी बल्कि बड़ी हद तक खुद गर्जी का मुजाहरा करते हुए वीरा सुल्तान शाह से इस बची हुई रकम का तज़किरा नहीं किया था। खामोशी से सब कुछ समेट कर अपने साथ ले आई थी। इस रकम की मौजूदगी में हम बेफिक्र होकर बैंकॉक में एक तवील अरसा गुजार सकते थे। 8:45 बजे मैंने गजाला के साथ कमरा छोड़ दिया। वो बैंकॉक में इसका पहला डिनर था। बंद कमरे में तनहा बैठकर खाना खाने का तसव्वुर उसके लिए तकलीफ से साबित होता। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक वो निचले फ्लोर पर पहुंचते ही मुझसे अलग होकर होटल के रेस्टोरेंट की तरफ चलती। मैं मुड़कर लॉबी की तरफ हो लिया। मैं एक सोफे पर बैठा ही था कि करीबी सोफे से एक खुश शक्ल पाकिस्तानी उठकर मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ आया। उसने मकामी रिवाज के मुताबिक शौक कपड़े पहने हुए थे। गले में हल्का सा फूलदार स्कार्फ करीने से लगा हुआ था। मैंने कनखियों से उसे अपनी तरफ आते हुए देख लिया था, मगर उसके करीब आने तक मैं अनजान बना बैठा रहा। इस वक्त मुझे ख्याल आया कि मैंने असद से मुलाकात का वक्त तय करते हुए बाहमी शनाख्त के बारे में कुछ तय नहीं किया था। मुझे असद कहते हैं। उस शख्स ने मेरे करीब आकर कहा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली। मेरे खुदखाल के बिना पर उसने सही अंदाज़ा लगाया था और मेरे करीब आ पहुंचा था, मगर वो इस बारे में पुरयकीन नहीं था। उसे अपने अंदाजे पर 100% यकीन होता तो वो मुझे आप जनाब से मुखातिब न करता। फ़ोन वाली बेतकल्लुफ़ी का मुजाहरा करते हुए बगलगीर हो जाता। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि अजनबियत का इजहार करके उसे ज़हनी झटका दूं, मगर फिर वो इरादा मनसूख कर दिया और अली अहमद कहते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैं वक्त से पहले आ गया था तो उसने हाथ मिलाकर बेतकल्लुफ़ी से मेरे करीब बैठते हुए कहा, मैंने ऊपर से आने वालों पर निगाह रखी हुई थी। शायद सदफ भी तुम्हारे साथ नीचे आई थी और खाने के लिए रेस्टोरेंट की तरफ निकल गई। मुझे मरऊब करने की कोशिश न करो। मुझे मालूम है कि तुम किस महकमे के लिए काम करते हो। मैं क्या मरऊब करूंगा? उसने हल्का सा कहका लगाकर कहा, मुझे बताया गया कि तुम खासी तोप चीज़ हो, हम लोगों के लिए अक्सर काम करते रहते हो। और क्या बताया गया है? मैंने सिगरेट सुलगाते हुए पूछा। यह मालूम होना बहुत ज़रूरी था कि इसे मेरे बारे में क्या बताया गया था। असूली तौर पर मुझे कराची छोड़ने से पहले जलाल से इस बारे में सब कुछ मालूम कर लेना चाहिए था। उजलत और शायद खुद एतमादी की वजह से मुझसे वो चूक हो गई थी जिसका तदारक मुझे खुद करना था। तुमको किसी मिशन पर यहाँ भेजा गया है, उसने नीची आवाज़ में कहा। इसमें छोटा राजन एक अहम आदमी है। इस तक पहुँचने में मुझे तुम्हारी मदद करना होगी। हो सकता है कि ये मामला राजन तक महदूद न रहे। इस चक्कर में कोई और अहम नाम भी मुलव्विस हो सकता है। इस बारे में तुम क्या कर सकते हो? मैंने सिगरेट का गहरा कश लेकर पूछा। फिलहाल इंतजार करना होगा। 1 हफ्ते से राजन गायब है। हो सकता है कोई किसी काम से मुंबई चला गया हो। उसके काम वहां भी फैले हुए हैं। वो यहाँ क्या करता है? राजन के बारे में मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। बज़ाहिर वो एक मालदार भारतीय है जो अपना ज्यादा वक्त बैंकॉक में गुजारना पसंद करता है। पार्टियों पर वो पानी की तरह पैसा बहाता है। यहाँ के बड़े सरकारी अफसरों में उसका बहुत असर रसूख है। वो बहुत शौक से राजन की पार्टियों में शरीक होते हैं। ये राजन की अपनी बनाई हुई तस्वीर है। दूसरों के लिए ढकी छुपी बात नहीं होनी चाहिए कि वो दरअसल भारत का एक छटा हुआ बदमाश है जिसकी सारी दौलत गैर कानूनी है। इसकी कानूनी आमदनी भी बेहिसाब है। वो मुंबई में बड़ी जायदादों का लेन देन करता है। बैंकॉक में उसके कई नाइट क्लब और कैसीनो चल रहे हैं। हाल ही में उसने व्हाइट हाक नामी एक लग्जरी बोट खरीद कर इस पर तैरता हुआ कैसीनो और अयाशी का अड्डा कायम किया है जहां हर कस नाकस नहीं जा सकता। वो सिर्फ मेंबरों के लिए मखसूस है। इन जराए से वो करोड़ों कमाता है। इस पर यहाँ और भारत में टैक्स भी देता है। लोग जानते हैं कि ऐसे कामों में बदमाशी जरूरी होती है, इसलिए वो राजन के खिलाफ फैलने वाली कहानियों को ज्यादा अहमियत नहीं देते। इस वक्त तुम भी उसके मद्दाह नजर आ रहे हो, मैंने हंस कर कहा। यह तस्वीर का एक रुख है, उसका दूसरा रुख बहुत भयानक है। उसने बैंकॉक से मुंबई तक में गुंडों की एक फौज पाली हुई है। वो राजन के नाम पर छोटे धंधे करने वालों से भत्ते लेते हैं, लावारिस जायदादों पर जाली कागजों के जरिए कब्जा कर लेते हैं। स्मगलिंग और मंशियात फरोशी पर इनका राज है। हरीफों से सरकारी अफसरान तक जो कोई इनकी राय में मुज़ाहम होता है, इसे वो खामोशी और सफाकी से मौत के घाट उतार देते हैं, असद ने बताया। इसके बावजूद उसे मुअज़्ज़ज़ समझा जाता है। मैंने हैरत से पूछा, इसके आदमी बेदाग जराइम करते हैं? किसी से लग्जिश हो जाए तो उसका भी सफाया करा देता है। जब तक कोई सबूत ना हो इन कहानियों की कोई वक़्त नहीं है।
इस तक रसाई की क्या सूरत मुमकिन है? मैंने गौर से उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। यहाँ की महंगी आबादी में इसका घर किसी कले से कम नहीं है। मुसल्लह बदमाशों की एक बड़ी टोली घरेलू मुलाजमों की सूरत में वहाँ हर वक्त तंदनाती रहती है। वहाँ उसकी मर्जी के खिलाफ उस तक पहुँचना नामुमकिनात में से है। वो बाहर निकलता है तो इस वक्त भी मुहाफिज उसके साथ चलते हैं। उसे मनफी नुक्ते बयान कर दिए। मुल्कों के हुक्मरान मनसूबाबंदी करके मार दिए जाते हैं। राजन ऐसा नाकाबिले तस्खीर नहीं हो सकता। मैंने बेयकीनी से कहा। कोई नाकाबिले तस्खीर नहीं होता। अगर तुम उस तक पहुंचना चाहती हो तो कोई ना कोई राह निकाल ली जाएगी। मैं तुम्हें उसके मामूलात बता रहा था, असद बोला। असद ने पूरी गुफ्तगू में एक बार भी मेरे असल नाम का हवाला नहीं दिया था। आसार बता रहे थे कि जलाल ने उसे मेरे बारे में महदूद मालूमात फराम की थी। इससे आगे का मामला मेरी स्वाबदीद पर छोड़ दिया गया था। हम दोनों वहां से उठकर होटल के उस रेस्टोरेंट की तरफ चल दिए जहां खास तौर पर कई मुल्कों के एशियाई खाने दस्तयाब थे। रेस्टोरेंट भरना शुरू हो गया था। फिजा में तंबाकू के धुएं, अल्कोहल और खानों की इश्तिहा अंगेज खुशबुओं के गहरे असरात छाए हुए थे। मैंने वहां दाखिल होते ही पूरे हाल पर निगाहें दौड़ाईं। वहां गजाला का नामो निशान तक नहीं था। शायद उसने अपनी शिकम पूरी के लिए होटल के किसी और हिस्से का इंतखाब किया था। हम एक गोशे में दीवार के साथ लगी हुई ऐसी मेज के गिर्द जा बैठे जहां सिर्फ 3 कुर्सियों की गुंजाइश थी। इसी मुनासबत से वो मेज भी छोटी थी। रेस्टोरेंट में बैठने के बाद गुफ्तगू का रुख बदल गया। वो मुझे अपने बारे में बता रहा था। उसके बीवी बच्चे लाहौर में रहते थे अपनी पेशावराना जिम्मेदारियों की अंजामदही और बचत के लिए। वो तकरीबन 2 साल से बैंकॉक में तनहा रह रहा था। इसके बैरून मुल्क तैनाती की मुद्दत पूरी हो चुकी थी। किसी भी वक्त उसकी पाकिस्तान वापसी के अहकाम आ सकते थे। इसके तजर्बे और मुशाहिदे के मुताबिक मशरिक का वो शहर अपनी रंगारंगी और हयात आफरीनी के बावजूद गुनाहों की एक खुशनुमा दलदल में तब्दील हो चुका था, जहां कदम कदम पर इस दलदल की तरफ भटकने के वाज़े इम्कानात थे। लेकिन वो नहायत सब्र व कनात के साथ वहां अपना वक्त गुजार रहा था। हर किस्म के मकामी और गैर मकामी लोगों से मरासिम होने के बावजूद वो शराब और औरत के सहर से आज़ाद था। बैंकॉक में पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद आबाद थी। वो लोग मुलाजमतों और छोटे मोटे कारोबार से अपनी रोजी कमा रहे थे। असद के लिए पूरी पाकिस्तानी बरादरी की इनफरादी सरगर्मियों पर निगाह रखना मुमकिन नहीं था, लेकिन अपने खसूसी मरासम की वजह से उसे अहम वाक़यात से बर वक्त आगाही हासिल हो जाती थी। इसका काम किसी कार्रवाई में मुलव्विस होने की बजाय अहम वाक़यात की मॉनिटरिंग तक महदूद था। वो अपनी सारी माहाना रिपोर्टें इस्लामाबाद को अरसाल करता था। बैंकॉक में अपने कयाम के 2 सालों में उसे इस वक्त पहला ज़हनी झटका पहुंचा था जब उसे यह पता चला कि सोबराज पाकिस्तान में गद्दारी जैसे संगीन जराइम में मुलव्विस है। सोबराज अपने अरूज के ज़माने में अक्सर निजी दौरों पर बैंकॉक आता रहा था। सफारती अमले के अलावा असद भी इसे अपना भरपूर ज़ाती ताउन फराम करता था। मेलजोल की वजह से उसकी सोबराज से खासी शनासाई थी। उसे सोबराज की सिर्फ एक बात नापसंद थी। वो पाकिस्तान का एक मारूफ सियासतदान था, लेकिन बैंकॉक में उसकी राजन से गहरी दोस्ती थी। बैंकॉक में अपनी मौजूदगी के दौरान में वो राजन की कोई पार्टी नहीं छोड़ता था। अयाज तबाह होने की वजह से बैंकॉक की बदनाम औरतें अक्सर उसके इर्द गिर्द मंडलाती रहती थी। वो इसकी गंदी दिलचस्पियां थीं। असद कई बार अपनी रिपोर्टों में उनका जिक्र कर चुका था। पाकिस्तान से सोबराज के खिलाफ शशमकुशाह खबरें आने तक वो इसे एक बिगड़ा हुआ और रंगीन मिजाज सियासतदान समझता रहा था। वो खबरें सुनने के बाद उसे सदमा हुआ कि वो बेखबरी के आलम में 2 साल से मुल्को कौम के गद्दार की खिदमत करता रहा था। इसी दौरान में असद ने वेटर को खाने का आर्डर दे दिया। खाना शुरू हुआ तो हम दोनों की गुफ्तगू फिर पिछले ढब पर आ गई।